Hello student. Today we are going to proceed the last topic of carbohydrate, that is polysaccharide. In 12th standard, polysaccharide mainly involve three components, that is cellulose, glycogen and starch. We have already the basic idea about the carbohydrate, that is polysaccharide. This carbohydrate is one of the three carbohydrates which we have to categorize on the basis of hydrolysis. First one is monosaccharide, that is the simplest form of carbohydrate which not undergo further hydrolysis to produce more simple carbohydrate. Second one is oligosaccharide. Oligosaccharide produce 2 to 10 monosaccharide after hydrolysis, and third one is polysaccharide. And polysaccharide produce more than 10 monosaccharide after hydrolysis. So we are here to discuss polysaccharide. Polysaccharide has general formula. C6H10O5. It contains number of monosaccharide. Number of monosaccharide attached by glycosidic bond. It is tasteless. It is tasteless, colorless, insoluble in water, non-reducing in nature, and these are non-sugar. These are non-sugar carbohydrate. These are non-sugar carbohydrate. ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में मतलब पॉलीसेक्राइड के बारे में खास बातें हैं. पॉलीसेक्राइड का जो मेन एग्जांपल जो हमें डिस्कस करना है वो सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च. अब देखने की बात ये है कि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेलुलोज की. सेलुलोज जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट किंगडम. Most abundant organic compound in plant kingdom. पौधों में पाया जाने वाला सर्वाधिक पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है. दूसरी बात इसकी खास देखिए, in cotton it is about 90%. In wood it is about 50% cellulose. In plant cell wall is made up of सेलुलोज. इफ वी से, यदि हम देखते हैं कि सेलुलोज बना किस चीज से होता है,
तो इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज with C1C4 linkage. With C1C4 glycosidic linkage. ये देखिए, its molecular mass is very high. Its molecular mass is very high. That is about 50,000 to 5 lakh unit. That means it contains 300 to 2,500 unit of glucose in single molecule. अगर मैं सेलुलोज लेता हूं, एक तंतु लेता हूं, एक थ्रेड लेता हूं, तो इट कंटेन 300 to 250 2500 यूनिट बीटा डी glucose in per molecule. It is not digested in human body. It is not digested in our body because cellulose जो है डाइजेस्ट बाय सेलुलेज. सेलुलेज ये एंजाइम है, फाइंड इन रूमिनेंट. तो अगर ये ग्लूकोज देगा, माने ये जो है मवेशियों में पाया जाता है, जैसे गाय हो गए, काऊ, बैलर्स जो ग्रेजिंग करते हैं ना, वो उसमें पाया जाता है. इट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर. अच्छा, इसका यूज बहुत है. यूज है, इंपॉर्टेंस क्या है? इन पेपर इंडस्ट्री, in textile industry, in to make gun cotton or explosive, बम बनाना मतलब बारूद बनाने में, to make a very important explosive used to make gun cotton. एक्सप्लोसिव है. टू मेक रेयॉन सेलुलोज नाइट्रेट, एक्सेट्रा सेलुलोज एसीटेट, बहुत सारी चीजों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है. तो ये तो सेलुलोज की बातें हो गई. अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं, तो ग्लाइकोजन दैट इज द स्टोरिंग फूड मटेरियल इन आवर बॉडी. जो ग्लाइकोजन है, ये जो है, इट इज storing food material in our body. हमारे बॉडी में ये
स्टोरिंग फूड मटेरियल है, भोजन को स्टोर करने वाला मटेरियल है। इसी रूप में भोजन स्टोर होता है हमारे बॉडी में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। It is the polymer of alpha D glucose with C1C4 linkage, and if there is a branch then C1C6 linkage। C1C4 पे स्ट्रेच चेन बनेगा और C1C6 पे ब्रांच क्रिएट होगा। ठीक है, it is insoluble in water। अगर हम इसको देखें तो its structure is resembled with, yes, its structure is similar to amylopectin। its structure is similar to amylopectin, but the difference क्या है बेटा, कि इसका जो ब्रांच होता है वो स्मॉल होता है और डेंस होता है, बट डिफरेंस इज दैट इट हैज शॉर्ट एंड shorter branches and denser, and its density is high। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब अगर ग्लाइकोजन है तो इसकी ब्रांच में 10 to 14 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होगा, जबकि एमाइलोपेक्टिन में इसमें 20 to 25 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होगा। अच्छा, ये चूंकि हमारे बॉडी में स्टोरिंग फूड मटेरियल है, तो इसका उपयोग कब होता है, जब हम फास्टिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। It supply the energy to our body during fast and exercise। It supply the energy to our body, it supply the energy to our body during fasting and exercise। इस दौरान ये बहुत सारा हमारा एनर्जी सप्लाई करता है हमारी बॉडी। अब जो मेन है, इसका जो फाइंडिंग है कि ये फाइंड कहाँ होता है, इट इज फाइंड इन अपनी बॉडी में कहें तो लिवर, ब्रेन एंड मसल्स, और इन अदर देखें तो इन ईस्ट एंड फंगस। इट इज ऑल्सो present। तो इस प्रकार से ग्लाइकोजन के ये डाटा है अपने पास। अगर मैं स्टार्च की बात करूं बेटा, तो
स्टार्च जो है, इट इज द स्टोरिंग फूड मटेरियल इन प्लांट बॉडी एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस और फॉर एनिमल. इट इज द स्टोरिंग फूड material in plant body, main source energy for us. So it is the important component of our diet. हमारे भोजन का मुख्य माने भाग होता है, क्योंकि हमें ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है. इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज which compose to give the two compositional unit that is amylose and amylopectin. देखिए बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज होता है जिससे कि स्टार्च बनता है, लेकिन ये अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ के दो यूनिट बनाता है. एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन. अच्छा, स्टार्च कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है. इट इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. अच्छा, और देखिए, इट गिव आयोडीन टेस्ट, यानी स्टार्च प्लस आयोडीन सॉल्यूशन, तो आपको ये ब्लू कलर आ जाएगा. और कलर की खास बात क्या होगी कि गर्म करने पे गायब हो जाएगा और ठंडा करने पे रीअपियर हो जाएगा. यानी when it hot, when it allowed to heat, blue color disappear, and when it become cold, the blue color reappear. When the blue cells get heat, its color get disappear, and when become cold, the color get reappear. जब गर्म करिएगा तो गायब हो जाएगा, जब ठंडा कीजिएगा तो वापस आ जाएगा. अच्छा, स्टार्च को अगर मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, अगर मैं स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं तो इसके लिए डाइस्टीज माने स्टार्च माने C6H10O5. अगर मैं डायस्टेज, ये इंजाइम है बेटा, अगर इसे ट्रीट करेंगे तो माल्टोज बनेगा, यानी C12H22O11, और फिर इसे माल्टेज, यानी ये एंजाइम है, तो ये फिर वही बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, यानी C6H12O6. ये बनेगा. अब मेन चीज है कि ये जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं. तो
देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, गिव डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड आप सीधे दोनों तरफ लिख लें। एक तरफ लिख लीजिए एमाइलोज, एमाइलो पेक्टिन। अब देखिए एमाइलोज क्या होता है? इट इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। इट इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ क्या? स्टार्च। ये क्या होता है? इट इज insoluble, it is insoluble component of a starch in water। ये पानी में नहीं घुलता, ये पानी में घुल जाता है। It compose 15 to 20% of net composition और स्टार्च। ये स्टार्च का नेट कंपोजिशन का 15 से 20% कंपोज करता है और वो 80 से 85%। इट कंपोज 80 to 85% ऑफ टोटल कंपोजिशन ऑफ स्टार्च। अच्छा थर्ड पार्ट देखते हैं कि इट इज अनब्रांच्ड। और इट इज ब्रांच्ड। अच्छा इट कंटेन 200 to 1000 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक linkage। Unbranched chain. It contains 200 to 1000 unit alpha D glucose with C1C4 glycosidic bond। और ये क्या करेगा? It contains 20 to 25 unit of अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन इसमें दो लिंकेज होती है। जब ये चेन बनाता है तो C1C4 से बनाता है, जब ब्रांच क्रिएट करता है तो C1C6 से करता है। विथ जरा देखते हैं with C1C4 unbranched chain and C1C6 branched chain। ये देखिए C1C4 अनब्रांच चेन होगा और C1C6 ब्रांच चेन होगा। जैसे ये जैसे ऐसे अब यहां से ऐसे निकल गया, यहां से ऐसे निकल गया, इसमें से फिर से ऐसे निकल गया, यहां से ऐसे निकल गया, इसमें से इधर निकल गया, फिर इसमें से इधर निकल गया, ऐसे इसमें से इधर निकल गया, इसमें से इधर निकल गया, इसमें से इधर निकल गया। देख रहे हैं ना, ये लंबी चेन नहीं है, छोटी छोटी चेन से, लेकिन बहुत कंडेंस। और जबकि ये लंबी अनब्रांच चेन रहेगी।
अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज वेरी हाई, 10,000 यूनिट टू 5 लाख यूनिट 10,000 यूनिट से लेके, और कंपैरेटिवली इट हैज लो मॉलिक्यूलर मास। तो ये स्थिति बनती है बेटा। अब जो ये इसके डिफरेंसेस हैं, और जो मेन है अब इसका इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द प्लांट एंड एनिमल। पहली बात तो दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरी बात ये है कि पेपर इंडस्ट्री हो गई और आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, सब इसी से बनता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, it is very important for both the animal and plant. It forms cell wall of plant cell, है कि नहीं? और क्या करता है बेटा? It is important for paper industry, textile industry. अच्छा, एक बात जानते हैं, इन न्यूक्लिक एसिड, यानी एक होता है DNA और एक होता है RNA, इसमें जो शुगर होता है 2-deoxyराइबोज, और इसमें होता है D-राइबोज। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ATP होता है ना, ट्राइफॉस्फेट, इसे बेटा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। और सेल for synthesis of this one, ribose is very important. It requires ribose for its synthesis, है ना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सिडरी पॉइंट है कि फॉर फॉर्मेशन of one molecule of glucose, one molecule of glucose, we require 18 ATP. 18 ATP is required. 18 ATP is required. 18 ATP की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से जितनी भी आपके कार्बोहाइड्रेट के जुड़े हुए 12th का जो कंटेंट था वो आपको डिलीवर हो चुका है, और ये आपका एकेडमिक कॉम्पिटिटिव सारे एग्जाम में इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसको बार बार रिवाइज करना होगा आपको, और बार बार देखना होगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करने होंगे, उससे जुड़े हुए अपने बार बार ऑब्जेक्टिव MCQs को सॉल्व करने होंगे। तो बार बार इससे रिवाइज करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।